Dear student, today we are going to discuss rearrangement reaction. Rearrangement reaction. Rearrangement reaction. There are three important rearrangement reactions. That is, first is Pinacol-Pinaclone rearrangement. Pinacol-Pinaclone rearrangement reaction. Rearrangement reaction, which are included in alcohol, which are found in alcohol. You have also studied. And second is Claisen rearrangement reaction. Claisen rearrangement reaction. Claisen rearrangement reaction, as well as Claisen and Fries rearrangement reaction. Fries rearrangement reaction. Fries rearrangement reaction. Okay. Both these two rearrangement are present in phenol. Topic in phenol. तो मुझे उम्मीद होगी आप सभी को आवाज जा रही है। ठीक है, आज हम लोग इन तीनों रीअरेंजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट इज, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता क्या है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपाउंड में कोई किसी एक एटम का अपने पोजीशन को चेंज करना ही रीअरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक्स वाई, ये सपोज करो कोई मॉलिक्यूल है और इसमें मैंने लगा दिया ए कोई एटम। अगर ये एटम जो है सपोज करो इससे निकलकर आकर इस पे सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है, इस पे लग जा रहा है, तो एक्स से निकलकर वाई पे लग गया, इसको हम लोग बोलेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है द एटम्स व ग्रुप ऑफ एटम्स आर चेंज इट्स पोजीशन विद इन द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो आज हम लोग इसी रीअरेंजमेंट रिएक्शन में सबसे पहले बात करेंगे पिनेकॉल-पिनेक्लॉन रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में। पिनेकॉल-पिनेक्लॉन rearrangement reaction. This is the most important rearrangement reaction in alcohol. Topic alcohol. Pinacol-Pinaclone rearrangement reaction. You know about the rearrangement reactions. The parts of molecule change its position within the molecules are called rearrangement. But here, Pinacol-Pinaclone rearrangement reaction, it means when the Pinacol change into the Pinaclone by the process of rearrangement reaction, then this type of rearrangement is called Pinacol-Pinaclone rearrangement reaction. Okay, should be noted. Those rearrangement reaction in which Pinacol change into Pinaclone by the process of rearrangement called Pinacol-Pinaclone rearrangement reaction. Pinaclone rearrangement reaction. Rearrangement reaction. Okay, means the reaction by which
Pinecol change into the pinecolon by the process of rearrangement called pinecol rearrangement. But before the discussion of pinecol rearrangement, we are going to discuss what is the pinecol. Pinecol क्या है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे pinecol के बारे में. What is the means of pinecol? You have studied in diols. Diols में आपको ये बताया गया कि जैसे ये CH2 है, CH है, CH2 है, ये CH2 है. अगर यहाँ पे OH लगा दिया जाए, ये OH लगा दिया जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Diols बोलते हैं. Okay. On the basis of number of hydroxyl group, you have classified alcohol are 3 types: monohydric, dihydric, and trihydric. This is the dihydric alcohol that is called diols. Okay. ये diols. लेकिन diols में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दोनों OH ग्रुप ऐसे कार्बन्स लगे हैं जो एक दूसरे से अटैच नहीं है, एक दूसरे से ज्वाइन नहीं है. अगर मैं इन दोनों, जैसे सपोज करो ये CH है, ये CH3 है, मैंने OH को यहाँ पर लगाया और OH को यहाँ पर, ये भी आपका डाइयाल्स है, लेकिन ये डाइयाल्स जो है कहलाएगा पिनेकॉल. क्या कहलाएगा? पिनेकॉल. ये भी आपका डाइयाल्स है, बट ये डाइयाल्स पिनेकॉल नहीं कहलाएगा, लेकिन ये डाइयाल्स पिनेकॉल. इसका मतलब क्या हुआ? when two hydroxyl group attached to two carbon atom adjacent to carbon atom, then that's diol is called pinecol. जब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है दो एडजेसेंट कार्बन से अटैच होते हैं, उससे ज्वाइन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिनेकॉल बोलते हैं, या उसी को डाइयाल्स बोलते हैं. सभी डाइयाल्स पिनेकॉल नहीं होते हैं, लेकिन सभी पिनेकॉल्स डाइयाल होते हैं. ओके. अब हम सपोज करो कोई पिनेकॉल्स ले रहे हैं. ओके. मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग नोट कर लिए. अब कोई हम लोग क्या ले रहे हैं? पिनेकॉल्स ले रहे हैं. अभी कुछ स्टेटमेंट इसमें और भी देना है कि पिनेकॉल हम लोग किसको बना रहे हैं. सपोज करो ये है आपका पिनेकॉल CH3C, यहाँ पर CH3 लगा देंगे, OH, और ये COH, और ये CH3 CH3. अगर मैं इसकी नेमिंग दूं, नंबरिंग करूं, इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? देखिए जरा, 1 2 3 4. दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. ओके. 2 पे मिथाइल ग्रुप है, दिस इज द 3 पे मिथाइल ग्रुप है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 3 डाइमेथिल, 2 3 डाइमेथिल, ब्यूटेन 2 3 डाइऑल. this diocletian of this पिनेकॉल. ये भी इस समय क्या है? पिनेकॉल. पिनेकॉल कोई कंपाउंड का नेम नहीं है. पिनेकॉल एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था का नाम है पिनेकॉल. इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर क्या हुआ, जब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे लगे हों, ऐसे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो दोनों कार्बन से अटैच हों, आपस में दोनों कार्बन अटैच हो, उससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा, उसको पिनेकॉल बोलेंगे. ऐसा नहीं है कि जैसे CH2 है, यहाँ पर OH लगा दें, CH है, यहाँ पर OH ना लगा देंगे, CH2 OH लगा दिए, तो दो OH है, इसको डाइऑल बोलेंगे, लेकिन ये पिनेकॉल नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से लगा है, ये दोनों कार्बन एडजेसेंट कार्बन नहीं है. ओके. तो नाउ वी आर गोइंग टू discuss about the change of pinecol into pinecolon. This is the pinecol. When pinecol is converted into H2SO4 की उपस्थिति में अक्रिया होती है, H2SO4 की उपस्थिति में अक्रिया हम कराएंगे. When pinecol is converted into CH3 C CH3 CH3 C double bond O and CH3. This is called pinecolon. Pinecolon. On means ketonic group. ये हमारा जो पिनेकॉल है, पिनेकॉल जब कीटोनिक ग्रुप को बियर करता है, दैट्स पिनेकॉल इज कॉल्ड पिनेकॉल. इसी रिएक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. ये आपका रिएक्शन मींस चेंज ऑफ पिनेकॉल इनटू पिनेकॉन बाय द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड पिनेकॉल रीअरेंजमेंट. ओके. इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के रूप में मैंने आपको दिखाया. इसका मतलब when 2,3-dimethyl butane 2,3-diols is treated with conc H2SO4, then 2,3-dimethyl butane 2,3-diol change into the
change into the, what is the name of this compound? 1 2 3 4. Name of pinecolon is 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butane, butane 2. This means when 2,3-dimethyl butane 2,3-diol is treated with conc H2SO4, then 3,3-dimethyl butane 2-on are formed. 3,3-dimethyl butane 2-on is called pinecolon. It means pinecol is changed to the pinecolon by the process of rearrangement. This rearrangement is called pinecol-pinecolon rearrangement reaction. Okay. अब हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, मैकेनिज्म कैसे होगा। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, वो क्या क्या घटनाएं हो रही हैं ड्यूरिंग द चेंजिंग ऑफ रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर हम लोग फर्स्ट लेंगे। स्टेप फर्स्ट इज कॉल्ड प्रोटोनेशन स्टेप। सबसे पहले हम लोग क्या कराएंगे? प्रोटोनेशन का। प्रोटोनेशन इसलिए क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कैरी हो रहा है। आपको पता है जब प्रोटोनेशन की बात आएगी तो हमारा H2SO4 ये क्या करता है? प्रोटॉन देता है। क्या देगा? प्रोटॉन देगा। H प्लस प्लस HSO4 माइनस। ये प्रोटॉन जिस बीकर में मैं रिएक्शन कैरी कर रहा हूँ उस बीकर में ये प्रोटॉन है। उसमें मैंने 3,3-डाइमेथिल, उसमें मैं 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3-डाइऑल डाल दिया, दैट इज पिनेकॉल डाल दिया। तो पिनेकॉल मैं इसमें डाल दूंगा CH3 CH3, ये है CH3, ये होगा OH और ये CH3, या यहाँ पे नीचे में OH ही लिखूं, OH, और ये है CH3, ये है बेटे CH3। आप सबसे पहले क्या कराएंगे, चूंकि ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन हो तो जाहिर सी बात है सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले प्रोटोनेशन करेंगे। अब बात ये आती है कि कौन सा हाइड्रॉक्सिल प्रोटोनेशन करेगा, तो दोनों हाइड्रॉक्सिल सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल हाइड्रॉक्सिल है तो कोई एक हाइड्रॉक्सिल का आप प्रोटोनेशन करा सकते हैं। कोई एक हाइड्रॉक्सिल का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H प्लस को एब्जॉर्ब किया और ये क्या बन गया? प्रोटोनेटेड CH3C, यहाँ हो जाएगा OH, और ये CH3 CH3, ये हो जाएगा OH 2 प्लस, और ये हो जाएगा CH3। फिर आगे क्या होने वाला है, ये तो पहला स्टेप हो गया प्रोटोनेट, मीन्स ये हमारा जो पिनेकॉल था ये चेंज हो गया प्रोटोनेटेड पिनेकॉल। प्रोटोनेटेड पिनेकॉल में क्यों चेंज हुआ? क्योंकि पिनेकॉल ने सबसे पहले प्रोटोनेटेड पिनेकॉल, ये प्रोटोनेटेड पिनेकॉल क्यों बना? क्योंकि हमारा जो पिनेकॉल है वो एसिडिक मीडियम है और उसके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले प्रोटॉन को एब्जॉर्ब किया, प्रोटोनेटेड पिनेकॉल में चेंज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड क्या होगा? स्टेप सेकंड में ये जो प्रोटोनेटेड पिनेकॉल है इस समय काफी स्ट्रेन हो चुका है क्योंकि डिहाइड्रेशन की प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो स्टेप सेकंड हम लोग डालेंगे डिहाइड्रेशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द कंपाउंड कॉल्ड डिहाइड्रेशन। हम लोग क्या करेंगे? कंपाउंड का डिहाइड्रेशन कराएंगे। चलिए, ये प्रोटोनेटेड पिनेकॉल्स ले रहे हैं, OH और यहाँ पर CH3 OH2 प्लस, और ये CH3 This is the protonated pinecols. Now protonated pinecols are easily loses the H2O, but when जब ये H2O को लॉस करेगा तो ये अपने स्टेबल इंटरमीडिएट में चेंज हो जाएगा। ये बनेगा क्या? देखिएगा, ये हो जाएगा CH3 CH3 और ये हो जाएगा OH C पॉजिटिव, and this is the CH3
दिस इज द CH3। दिस इज द, ये जो बना है इस, ये कौन सा कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन है, दैट इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, एंड यू नो दैट 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में चलती है। कार्बोकेटाइन क्या है, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट कब फॉर्म होता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, those compounds which are formed during the course of reaction between the reactant and product are called intermediate। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे। 2 स्टेप तक हो गया है हमारा, टर्सरी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया है। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड की बात हम लोग करेंगे। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड क्या हो सकता है, जो हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है वहां पर शिफ्टिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, रीअरेंजमेंट स्टेप। यहाँ पर क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट स्टेप हो रहा है, रीअरेंजमेंट। और ये रीअरेंजमेंट जो है, रीअरेंजमेंट जो है ये 3 प्रकार की शिफ्टिंग के द्वारा होता है। रीअरेंजमेंट जो है 3 प्रकार की शिफ्टिंग के द्वारा होगा। एक होगा हाइड्राइड आयन शिफ्ट, दूसरा होगा मिथाइल आयन शिफ्ट, हाइड्राइड आयन, मिथाइल आयन मींस एल्किल आयन शिफ्ट, और नेक्स्ट होगा एरिल आयन शिफ्ट। 3 तरह की शिफ्टिंग देखने को मिलती है रीअरेंजमेंट, या तो हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग देखने को मिलती है, या फिर मिथाइल, या तो एल्किल ग्रुप की शिफ्टिंग देखने को मिलती है, या फिर एरिल ग्रुप। लेकिन इन तीनों की शिफ्टिंग में सबसे ज्यादा शिफ्टिंग पावर जो होता है, सबसे स्लाइटली शिफ्ट जो है हाइड्राइड आयन की होती है, फिर एल्किल ग्रुप की होती है CH3-, फिर इसके बाद किसकी होती है, अगर सपोज करो फेनिल के रूप में है इसकी। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग, ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग। ओके, तो चलिए हम लोग रीअरेंजमेंट में इस शिफ्टिंग के बारे में दिखाएंगे क्या है। ओके, तो थर्ड स्टेप वी आर गोइंग टू डिस्कस शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का एक छोटा नाम है शिफ्टिंग। तो आपके पास जो बना था उसको अपलोड करिएगा। क्या बना था, CH3COH, और ये है CH3, और C यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये CH3 और ये CH3। ओके, अब देखो ये शिफ्टिंग कैसी होगी, जब इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस पे जाएगा तो इस पे डबल बॉन्ड कर देगा, कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी। तो कार्बन की जब वैलेंसी बढ़ेगी तो होगा क्या, ये जो मिथाइल होगा ये अपना शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर जाकर इस पे शिफ्ट कर जाएगा। ओके, इस शिफ्टिंग की जो नेमिंग होती है, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर जाकर शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट होकर क्या बना दिया, मैं यहाँ पर नीचे नोट कर रहा हूँ, देखिए जरा, ये बना दिया CH3C, यहाँ पर आ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे नीचे जनरेट हो रहा है, OH प्लस, और ये हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा CH3, ये बन गया। आपको समझ में आया? इस शिफ्टिंग की जो नेमिंग होती है उसका नाम होता है 1,2 मिथाइल शिफ्ट। चूंकि मिथाइल जो है, मिठाई नहीं बेटा, मिथाइल, क्योंकि ये जो मेथिल ग्रुप है ये अपना शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर जाके शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसको मिथाइल बोलते हैं। और जब ये शिफ्टिंग हो गई, फिर तीसरा स्टेप क्या होता है, सॉरी चौथा स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 4 क्या होगा, ध्यान रखिएगा। स्टेप नंबर 4, ये देखो आपका जो बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं क्या बना हुआ है, दिस इज द प्रोटोनेटेड क्विनेक्लॉन, दिस इज द प्रोटोनेटेड क्विनेक्लॉन। अगर ये प्रोटोनेटेड क्विनेक्लॉन से हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, हमारा फाइनल कंपाउंड बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन अगला स्टेप हो सकता है, लॉस ऑफ H+ या लॉस ऑफ प्रोटॉन। लॉस ऑफ प्रोटॉन में चलिए स्टेप को देखें, जो हमारे पास स्टेप बना है CH3C, और यहाँ पर क्या बना है, सॉरी नीचे क्या बना है, OH प्लस, और ये हो जाएगा आपका CH3 और ये CH3। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉस ऑफ प्रोटॉन कराएंगे। लॉस ऑफ प्रोटॉन कराने के बाद क्या होगा, देखिए जरा, लॉस ऑफ प्रोटॉन -H+,
और फिर फाइनली आपको कंपाउंड मिल गया CH3C, और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड O, CH3 और फिर ये CH3। ये हमारा जो प्रोटोनेटेड पिनेक्लॉन था वो किसमें चेंज हो गया, पिनेकॉल में चेंज हो गया। दिस इज द पिनेक्लॉन। ये हमारा फाइनल कंपाउंड। अब ये H प्लस कहाँ पे यूज होता है, जो लॉस हुआ H प्लस है, हम लोग स्टेप फर्स्ट में ये लॉस किए थे H2SO4 को, जो हम लोग तोड़े थे, किसमें टूटा था, H प्लस प्लस HSO4 माइनस में, HSO4 माइनस में। ही इस समय बेस की भूमिका निभाता है, जो इस प्रोटॉन को लेकर किस रूप में निकल जाता है, H2SO4 के रूप में निकल जाता है। तो आप यहाँ पे ऐसा दिखा सकते हैं कि ये जो प्रोटॉन निकलेगा HSO4 माइनस की उपस्थिति में निकलेगा। HSO4 माइनस क्या करेगा, इसके प्रोटॉन को रिसीव करेगा, H2SO4 के रूप में निकलेगा। H2SO4 यूज एज कैटलिस्ट, जितनी मात्रा में आया तो उतनी मात्रा में रिमूव हो गया। ये तो आपका था पिनेक्लॉन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब इसमें कुछ बातें और भी हैं। ये जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, इसमें मैंने आपको बताया, जो शिफ्टिंग की बात बताई, हाइड्रोजन आयन की शिफ्टिंग, मेथाइल की शिफ्टिंग, और ये चूंकि हमारे पास जो पिनेकॉल था वो सिमेट्रिकल, जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल पिनेकॉल होता है, जैसे सपोज करो C है, CH3 है, यहाँ पर CH3 है, या तो आप ऐसे कर सकते हो, देखिए अगर सपोज करो मैं ऐसा ले लेता हूँ, यहाँ पर PH मीन्स फेनिल ग्रुप है, ये CH3 है, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, OH, दिस इज द OH, और फिर यहाँ पर मैंने H लगाया, CH3 लगाया, और फिर ये OH। अगर मैं इसको पिनेकॉल में, दिस इज द पिनेकॉल, अगर मैं इसको पिनेक्लॉन में चेंज कर रहा हूँ बाय द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजमेंट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जरा। सबसे पहले आप लोग यही करोगे, प्रोटोनेशन कराओगे, चूंकि H2SO4 टूटा है तो जाहिर सी बात है ये रिएक्शन किस में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में। तो सबसे पहले ये प्रोटोनेशन करेगा। मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ। ये इस समय हमारा कंपाउंड जो है ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। जब तक हमारे पास पिनेकॉल जो है सिमेट्रिकल होता है, वहां पे प्रोटोनेशन कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हमारा कंपाउंड जो है, पिनेकॉल जो है, अनसिमेट्रिकल फॉर्म में आ जाता है, तो वहां पे प्रोटोनेशन कराते समय थोड़ी सी सावधानी आपको ये लेनी होगी कि जिसकी शिफ्टिंग पावर ज्यादा है उसके अगेंस्ट में हम प्रोटोनेशन कराएंगे। यहाँ पे देखिए प्रोटोनेशन ये भी कर सकता है, प्रोटोनेशन ये भी कर सकता है। हम कराएंगे किससे, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन, मिथाइल और फिनाइल, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग पावर जो है फिनाइल मिथाइल से ज्यादा है, और इसकी शिफ्टिंग पावर जो है फेनिल से ज्यादा है। इट मीन्स सबसे ज्यादा शिफ्टिंग पावर हाइड्रोजन के पास है। तो ये हाइड्रोजन तभी शिफ्ट करेगा जब इसके सामने वाला, इसके जस्ट एंटीमेरिक फॉर्म वाला डिहाइड्रेट करेगा। इसका मतलब इसके जस्ट सामने वाला जो ट्रांसपोजिशन पे है, उसके सामने वाले पे अगर हम लोग प्रोटोनेशन करा देंगे तो उसका डिहाइड्रेशन इजी हो जाएगा। तो हम लोग यही करेंगे, इसके सामने वाले पर प्रोटोनेशन कराएंगे। इसके सामने मीन्स हाइड्रोजन के जस्ट सामने वाले का प्रोटोनेशन कराएंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को हमको शिफ्ट कराना है। सबसे ज्यादा शिफ्टिंग पावर किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। तो हाइड्रोजन की बेस पे, तब इसके बाद मेथिल की, तब इसके बाद फेनिल की। तो जो हाइड्रोजन होगा, अगर ये शिफ्ट करना चाहेगा तो हाइड्रोजन किस पे शिफ्ट करेगा, इस पे शिफ्ट करेगा। लेकिन कब, जब ये OH H2 के रूप में निकलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करा दें, इस पे शिफ्टिंग कराएं, तो क्या बन गया, PH, और ये CH3, और यहाँ पे हो जाएगा OH2 प्लस, और फिर इसके बाद हो जाएगा C, यहाँ पर H, और यहाँ पर OH, CH। अगले स्टेप में मैं कंटिन्यू करूंगा, प्रोटोनेशन, डिहाइड्रेशन, ये सब कंटिन्यू स्टेप में दूंगा। अगले स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा, अर्थात H2O निकलेगा। दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन स्टेप होगा, डिहाइड्रेशन स्टेप में आप ऐसे कर देंगे, PH, C, यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव, और ये बन जाएगा CH3, और ये बन जाएगा CH3, और ये हो जाएगा OH। अगले स्टेप में क्या होने वाले हैं, देखिए जरा।
ये पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव पे क्या होगा, शिफ्टिंग की प्रोबेबिलिटी बन रही है, ये हाइड्रोजन अपना सेम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आकर इसको शिफ्ट करेगा, दैट शिफ्टिंग इज कॉल्ड 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to H माइनस शिफ्ट। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद ये कंपाउंड क्या बन गया, PHC CH3 और ये हो गया H और ये हो गया C। लेकिन ये कब हुआ, आप लोगों को पता है ये कब होता है, जब इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डिलोकलाइज करके इस पे जाता है ना, ऐसा मैंने आपको बताया। ये क्या बन जाएगा, सॉरी ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बना डबल बॉन्ड OH प्लस और फिर इसके बाद ये हो जाएगा CH। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज लॉस ऑफ प्रोटॉन। ये क्या करेगा, प्रोटॉन को लॉस करेगा। प्रोटॉन को लॉस करने के लिए, लेने के लिए कोई ना कोई आएगा, क्या आएगा, HSO4 माइनस आएगा, क्योंकि स्टेप के HSO4 माइनस है। HSO4 माइनस आएगा, इस प्रोटॉन को लेगा, इस रूप में निकल जाएगा H2SO4 के रूप में निकल जाएगा। फाइनली हमारा जो कंपाउंड होगा वो बन जाएगा PHC CH3 और ये H और यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज आल्सो पीने क्लॉन, ये हमारा बन गया पीने क्लॉन। ओके, अगला देखिए, अगर आपके पास CH3 है, C है, सॉरी अगला देखें, अगर आपके पास सपोज करो कंपाउंड इस तरीके से, ये PH है, C है और यहाँ पर भी PH है, ये है PH और ये CH3 है, यहाँ पर OH है, ये भी आपका OH। इसमें क्या होने वाला है आपको पता है, ये भी पीनेकॉल है, पीनेकॉल को पीनेक्लॉन में चेंज करना है। अर्थात पहला हम स्टेप क्या कराएंगे, मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म की बात करूंगा, पहला स्टेप प्रोटोनेशन कराऊंगा। ये भी आपका क्या है, अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल में हमको प्रोटोनेशन कराने में थोड़ी सी असुविधा होगी, क्योंकि हमारे पास दो OH हैं, मैं किस पर प्रोटोनेशन कराऊंगा, तो देखूंगा किसकी शिफ्टिंग पावर ज्यादा है। आपके पास शिफ्ट करने के लिए फेनिल है, फेनिल है, फेनिल है और मेथिल। इस केस में मेथिल की शिफ्टिंग पावर फेनिल से ज्यादा है, अर्थात आप मेथिल वाले कार्बन का हाइड्रोक्सिल पे प्रोटोनेशन नहीं कराएंगे। जिसकी शिफ्टिंग ज्यादा होती है उस कार्बन के हाइड्रोक्सिल पे प्रोटोनेशन नहीं कराएंगे, उसके जस्ट बाद वाले कार्बन के हाइड्रोक्सिल पे प्रोटोनेशन कराएंगे, अर्थात ये प्रोटोनेशन इस पे होगा। क्यों, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन करेगा तभी ये शिफ्ट करेगा। ओके, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, प्रोटोनेशन करेगा। प्रोटोनेशन करने के बाद क्या बन जाएगा, PH और ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा OH2 प्लस और यहाँ पर हो जाएगा PH C, ये PH और ये CH3, फिर क्या हो जाएगा OH। अब आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, ये डिहाइड्रेशन करेगा, मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, माइनस H2O हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, PH यहाँ पे आप ऐसे लिखते जाएंगे, PH C PH यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट चांस कार्बोकेटाइन के रूप में, ये हो जाएगा OH CH, सॉरी ये हो जाएगा PH और ये हो जाएगा CH3। अगले स्टेप में क्या करेंगे, कंटिन्यू स्टेप को कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करके इस पे जाएगा और फिर ये मिथाइल क्या करेगा, इस पे आकर शिफ्ट होगा, दैट शिफ्टिंग इज कॉल्ड 1 to मिथाइल शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट, ये 1 to मिथाइल शिफ्ट होगा। फिर बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, PHC PH यहाँ पे हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH प्लस और ये हो जाएगा आपका PH कहीं लगा। फिर अगला स्टेप क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, प्रोटॉन को लॉस करेंगे, लेकिन प्रोटॉन किसकी उपस्थिति में लॉस होगा, किसी गैस की उपस्थिति में, HSO4 माइनस आएगा जो स्टेप में है, ये H प्लस को लिया किस रूप में निकल गया, H2SO4 के रूप में निकल गया। हमारा जो कंपाउंड बनने वाला था फाइनली वो बन चुका है PHC और ये हो जाएगा PH और यहाँ पर हो जाएगा CH3 और C डबल बॉन्ड O CH। ओके, दिस इज द पीरियड। अगला स्टेप देखिए, अगला मैं कंपाउंड ले रहा हूँ PH
सी पी एच और यहाँ पर ओ एच, और फिर ये आपका पी एच और फिर यहाँ पर भी पी एच, ये ओ एच। दिस इज द सिमेट्रिकल कंपाउंड, ये आपका सिमेट्रिकल कंपाउंड है, अर्थात प्रोटोनेशन आप कहीं भी कराइए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला स्टेप होगा मैकेनिज्म के थ्रू अगर हम लोग जाएं तो सबसे पहला स्टेप प्रोटोनेशन स्टेप होगा। प्रोटोनेशन स्टेप कोई भी ऑक्सीजन कर सकता है, क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल है। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पी एच सी पी एच और ये हो जाएगा ओ एच और यहाँ पर हो जाएगा सी ओ एच टू प्लस और ये पी एच और फिर यहाँ पर हो जाएगा पी एच। ओके, अगला स्टेप क्या होगा? डिहाइड्रेशन स्टेप होगा। ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकला माइनस H2, दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन करने के बाद ये कंपाउंड बना PHC PH, ये OH हुआ और यहाँ पर हो जाएगा C PH और ये PH, यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकेटाइन के रूप में आया। अब यहाँ पे शिफ्टिंग की प्रोबेबिलिटी बन रही है, कौन शिफ्ट करेगा भाई? कोई किसी भी, कोई चूंकि सभी फेनिल ग्रुप है किसी की आप शिफ्टिंग करा देंगे, फिनाइल शिफ्ट होगा। ओके, लेकिन फिनाइल कब शिफ्ट होगा? जब कार्बन की वैलेंसी बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन का ड्रॉप लेकर आएगा। तो दैट शिफ्टिंग इज कॉल्ड 1 to फेनिल शिफ्ट। ये 1 to फेनिल शिफ्ट हुआ। फिर क्या बन जाएगा देखिए जरा, ये बन जाएगा PH C डबल बॉन्ड OH प्लस और फिर क्या होने वाला है C, ये PH और यहाँ पे PH, ये PH। अगले स्टेप में क्या होगा? लॉस ऑफ प्रोटॉन, दैट स्टेप इज कॉल्ड लॉस ऑफ प्रोटॉन। लॉस ऑफ प्रोटॉन के लिए HSO4 माइनस जो एस्टिमेट, चूंकि ये रिएक्शन एस्टिमेटिव हो रहा है, H2SO4 को पॉजिटिव हो रहा है, सबसे पहले H2SO4 आयनाइज हुआ, H प्लस HSO4 माइनस, H प्लस को लेकर किसमें चेंज हो जाएगा? H2SO4 के रूप में ये निकल गया और ये आपका कंपाउंड बन गया PH C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा C PH, ये PH और ये। ओके, ये तो था पीने कॉल पीने क्लॉन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है जो हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, जो फिनाल के केस में स्टडी करने को मिलता है, उसका नाम है क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। Claisen rearrangement reaction. Claisen rearrangement reaction is given by allyl phenyl ether. This rearrangement is given by this rearrangement. This rearrangement reaction is given by allyl phenyl ether. Allyl phenyl ether. Okay. When allyl phenyl ether is treated with when allyl phenyl ether is heated at 180 degrees Celsius temperature, then allyl group migrates over ortho and para position. Over ortho and para positions. Ortho and para positions. Ortho and over para positions of benzene nucleus. Of benzene nucleus of phenol. In benzene nucleus of phenol. In benzene nucleus of phenol. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? ये रीअरेंजमेंट जो है एलिल फेनिल ईथर के द्वारा दिया जाता है। ये रीअरेंजमेंट कौन देता है? एलिल फेनिल ईथर। जैसे जब एलिल फेनिल ईथर को 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो जो इलाइल ग्रुप है वो माइग्रेट होकर फेनिल के
फेनिल के बेंजीन न्यूक्लियस के आर्थो और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है, रीअरेंजमेंट करके आ जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, अब आइए देखिए ये रीअरेंजमेंट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलिल फेनिल ईथर लेते हैं। ये आपका क्या है, फेनिल है। ओके, ये फेनिल, इस फेनिल पे मैंने O लगा दिया और ये लगा दिया CH, टू सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। अब आपको पता है इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि ये जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, ये इतना ग्रुप जो है इसको कहेंगे एलिल ग्रुप, दिस इज द एलाइल। और ये वाला जो है इसको हम लोग कहेंगे फेनिल। और ये चूंकि O जो है बीच में लगा है तो इसको हम ईथर बोलेंगे, चूंकि ROR को ईथर बोलते हैं, या फिर ROAR को ईथर बोलते हैं, ROR या ROAR या फिर AROAR। ठीक है, तो ये इस फॉर्म है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को सब्स्टिट्यूट कराएंगे, या तो आर्थो पोजीशन, दिस पोजीशन इज कॉल्ड आर्थो पोजीशन, ये पोजीशन मेटा है, ये पोजीशन मेटा है, और ये पोजीशन पैरा। ये जो एलिलिक ग्रुप है या तो आर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होता है या फिर पैरा पोजीशन। आइए हम लोग बात करते हैं। आपने देखा कि ये जो एलिल है, ओके, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, CH to single bond CH, double bond CH. This compound is called aline, aline, और ये ईथर। ओके, चूंकि क्लेजन रीअरेंजमेंट एलिन फेनिल ईथर देता है। किस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस लगाएंगे, डिग्री सेल्सियस लगाएंगे। फाइनली जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरीके से होगा। ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। इसका नाम होगा आर्थो एलिल फेनॉल। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, इसका जो रीअरेंजमेंट है वो इस तरीके का है। ये जो है इस पर आकर रीअरेंजमेंट हो रहा है, देखो कैसे। ये वाला बॉन्ड जो है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला बॉन्ड जो है इस पे जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, और ये वाला बॉन्ड जो है इस पे जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये रीअरेंजमेंट करके ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात करते हैं सीधा। तो ये देखिए इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है। मैकेनिज्म कैसे घटना हो रही है, मैकेनिज्म, इस रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म आप देखिए। आपने ये बनाया एलिल फेनिल ईथर, ये है OCH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये है डबल बॉन्ड और ये डबल। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस रीअरेंजमेंट में ये वाला बॉन्ड इस पे जा रहा है, ये वाला बॉन्ड इस पे जा रहा है, ये वाला बॉन्ड इस पे जा रहा है, और फिर ये नेगेटिव चार्ज, चूंकि इस पे पॉजिटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज पुनः इस पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ये इस तरीके का रीअरेंजमेंट है। और इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं तो ये 1 2 3। रिएक्टेंट में पहला कार्बन जुड़ा है, लेकिन ये जब सब्स्टिट्यूट हो रहा है आर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, वो तीसरा कार्बन हो रहा है। इसका मतलब इन्वर्जन हो रहा है, कंपाउंड उल्टा जुड़ा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्जन की घटना हो रही है। पहली चीज इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन की घटना हो रही है। और साथ ही साथ जब हम लोग इस कंपाउंड को बनाएंगे, ऐसे बनाते चलेंगे। थोड़ा सा एक TS दिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट TS है। तो CH2 CH CH। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है आपका डॉटेड बॉन्ड। जहां जहां मैं डॉटेड बॉन्ड दिखा रहा हूँ समझ लेना, तो वहां पे कुछ
घटना हो रही है, या तो बॉन्ड ब्रेकिंग की घटना हो रही है या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन की घटना हो रही है। डॉटेड बॉन्ड क्या दिखा रहा है, या तो बॉन्ड ब्रेकिंग की घटना दिखा रहा है या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन की घटना दिखा रहा है। यहाँ पे एक टीएस दिख रहा है और यहाँ पे सारा खेल जो है पाई इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है या इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के कारण हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक प्रकार का पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। क्योंकि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन किसे कहते हैं, दोज रिएक्शन इन विच system is carried out with the help of electron, system is carried out with the help of electron, या those reactions in which reactant can be changed into the product with the help of pi electrons, उसको हम लोग पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। ये आपका पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, और ये एक प्रकार का कंसंट्रेटेड रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, ये एक प्रकार का जो है कंसंट्रेटेड रिएक्शन है, कंसंट्रेटेड रिएक्शन, ये एक प्रकार का कंसंट्रेटेड रिएक्शन। कंसंट्रेटेड रिएक्शन का मतलब ये होता है कि those reaction in which bond breaking and bond formation process takes place simultaneously, यहाँ पर bond breaking और bond formation की प्रक्रिया दोनों एक साथ होती है, इसलिए इसको हम लोग कंसंट्रेटेड रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, आइए अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, जहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, उसको भी कुछ नोट करते चले। यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ बॉन्ड फॉर्म। ओके, आप देख रहे थे इसकी नंबरिंग मैंने किया था 1 2 3। जो शिफ्टिंग होने जा रहा है वो तीसरा कार्बन से शिफ्ट हो रहा है, पहला कार्बन शिफ्ट था, अब तीसरा कार्बन शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन का मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल पहले सेट था उसका उसका वो जो है उल्टा होकर उससे ज्वाइन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इन्वर्जन की घटना हो रही है। पेरीसाइक्लिक मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, पेरीसाइक्लिक क्यों है, क्योंकि ये पूरा पूरा जो सिस्टम को कैरी कर रहा है, जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, वो पाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको पेरीसाइक्लिक रिएक्शन बोलेंगे। कंसंट्रेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस दोनों एक साथ हो रही है, इसलिए इसको हम लोग कंसंट्रेट रिएक्शन बोलते हैं। आइए देखिए क्या बन रहा है, बनेगा क्या, ये आपका कंपाउंड हुआ। ओके, ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो जाएगा H, बाकी आप ऐसे जोड़ दीजिए CH2CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं नंबरिंग करूँ 3 2 1, और ये डबल बॉन्ड, ये डबल। अगले स्टेप में क्या होने वाला है, जरा आप ध्यान से देखिएगा। अगला स्टेप जो है, प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, ये वाला बॉन्ड अंदर जाएगा, डबल बॉन्ड करेगा, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, इस पे नेगेटिव, H के ऊपर पॉजिटिव, ये जाकर इस पे जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये कंपाउंड आपका, ये बन जाएगा आपका OH, और यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड, सॉरी ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड और चूंकि इसका जो ये आपका फंक्शन ग्रुप है, ये आर्थो पोजीशन, ये आर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन हुआ, ये मेटा पोजीशन हुआ, ये पैरा पोजीशन हुआ, इसलिए इसका नाम होगा आर्थो एलिल। आर्थो पे एलिल ग्रुप लगा है, आर्थो एलिल, ये आर्थो एलिल। बहुत इंटरेस्टिंग रीअरेंजमेंट था। नेक्स्ट रीअरेंजमेंट लोग इसी में पढ़ने चल रहे हैं। अगर सपोज करो मैं आर्थो पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये आर्थो पोजीशन को किसी एटम के माध्यम से या एल्काइल ग्रुप के माध्यम से सब्स्टिट्यूट कर, चलेगा, ये एल्काइल के माध्यम से मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। मैं अब दूसरे सेट के बारे में बात करूँ, मीन्स इफ द चूंकि एलिल फेनिल ईथर में जो क्लेजन रीअरेंजमेंट हो रहा है, जो एलाइल ग्रुप से हो रहा है, वो आर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा है। तो कंडीशन नंबर सेकंड ये है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आर्थो पोजीशन खाली है, एलिल ग्रुप जो है आर्थो पे सब्स्टिट्यूट होगा, लेकिन अगर आर्थो ब्लॉक है, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, तो वो पैरा पे होगा। तो मैं अगला स्टेटमेंट ये दे रहा हूँ, केस नंबर सेकंड, इफ आर्थो पोजीशन इज ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड देन द rearrangement takes place, then the allylic group migrates over the para position। ओके, कैसे होगा आइए देखें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करूंगा। यहाँ पे कुछ घटनाएं तो सेम है, सिमिलरली है, इसी तरीके से होंगी, लेकिन हमारा जो आर्थो पोजीशन अगर सब्स्टिट्यूटेड है तो फिर क्या होने वाला है, देखो जरा। आर्थो पे मैंने एल्किल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, दोनों आर्थो पे, मेटा पे होगा नहीं, पैरा पे जाएगा। कैसे जाएगा,
ये देखिए जरा, यहाँ पे हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड ओ, और फिर यहाँ पर क्या हुआ, आर है, और ये है आपका CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2। आपको पता है कि ये जो नेमिंग हुई है 3, 2, 1, यहाँ तक इन्वर्जन है, ये यहाँ तक हमको इन्वर्जन देखने को मिलता है। कंपाउंड इन्वर्जन हो गया है, कंपाउंड का इन्वर्जन हो गया है, बट ध्यान रखिएगा चूंकि ये चूंकि ये इसके पास की क्षमता नहीं है एल्काइल ग्रुप को रिप्लेस कर दे, तो फिर एल्काइल ग्रुप को ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है स्लाइटली था, बहुत स्लाइटली है, तो ये हाइड्रोजन को शिफ्ट कर सकता है बट एल्किल को शिफ्ट नहीं कर पाएगा। एट लास्ट में क्या करेगा, ध्यान रखिएगा, ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला बॉन्ड जो है, मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, जिस तरीके से ये वाला बॉन्ड उस पे जाकर ये वाला बॉन्ड इस तरीके से गया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी होने वाला है। ये वाला बॉन्ड इस पे जाने वाला है, डबल बॉन्ड हो जाएगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, और ये वाला बॉन्ड इस पे जाने वाला है, ये वाला बॉन्ड इस पे जाने वाला है। आप ख्याल से देखिए, मैं क्या किया, ये वाला बॉन्ड इस पे ले गया डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इस पे आया, इस पे नेगेटिव हो गया, ये वाला बॉन्ड इस पे, ये वाला बॉन्ड इस पे गया डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी बढ़ी, ये वाला बॉन्ड इस पे गया डबल बॉन्ड, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ी, ये वाला डबल बॉन्ड इस पे गया, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। ओवरऑल क्या हो रहा है, इसके बीच में इस तरीके की शिफ्टिंग हो रही है। अगर मैं दिखाऊं एक TS यहाँ दिखा सकता हूँ, अगर आप लोग हमको अलाउ करो तो मैं यहाँ पे एक TS दिखा सकता हूँ, जो कि TS बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप इस TS को जरूर देखें। ये आपका आ गया डबल बॉन्ड O, ये R है, ये R है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। यहाँ पे मैं क्या दिखा दूंगा, चूंकि अभी डबल बॉन्ड नहीं दिखाऊंगा, अभी डबल बॉन्ड हमको नहीं दिखाना है, अभी डबल बॉन्ड यहाँ पे हमको TS दिखाना है, तो चलिए TS को मैं दिखा दे रहा हूँ। 5 बॉन्ड के TS, ये हो जाएगा डॉटेड 5 बॉन्ड, ये डॉटेड, डॉटेड मीन्स बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या बॉन्ड फॉर्म, और फिर मैं इसको दिखाऊंगा, ये डॉट 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 CH2, फिर यहाँ पे डॉट 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 CH, और फिर ये सिंगल बॉन्ड डॉट 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 CH2, फिर ये हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट डॉट। ओके, अब जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, जहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड जो है क्या हो रहा है भाई, देखिए जरा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म। अब एक चीज और, अभी तक आपके पास जो कंपाउंड था वो इस डायरेक्शन में था, 3, 2, 1 में था, लेकिन ये 1 वाला जाकर अब जुगला है। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 1 वाला जाकर उसमें जुगला है, और जब ये 1 वाला जाकर उससे जुड़ेगा तो जो रीअरेंजमेंट की घटना होगी वो कैसी होगी, आप देखें, आप देखें बेटे, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा R, और फिर यहाँ पर क्या लगा देंगे H, और फिर ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2, कौन सा नंबरिंग है, 1, 2, 3, और फिर ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। अगली स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, ये वाला बॉन्ड अंदर जाएगा, और फिर ये वाला बॉन्ड जो है इस पे जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, इस पे आ जाएगा निगेटिव, और ये H प्लस जाकर इससे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा देखिए जरा, आपका बन जाएगा ये कंपाउंड, ये हो जाएगा OH, ओके, और यहाँ पर ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल, और यहाँ पे आप एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ऐसे लगाए रखेंगे। अब जो एडिशन हुआ 1, 2, 3, अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो नंबरिंग हुई थी 1, 2, 3, 1 वाला कार्बन एट लास्ट में प्रोडक्ट में भी 1 वाला कार्बन जुड़ रहा है, इसका मतलब जो है यहाँ पर रिटेंशन की घटना होती है, यहाँ से इसमें कन्वर्जन क्या हो रहा है, रिटेंशन की घटना हो रही है, तो ये आपका रिटेंशन हुआ। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखाना चाह रहा हूँ
यहाँ पे रिटेंशन की घटना होती है और वो ये है कि इफ आर्थो, मैं आपको क्या बताया, एलाइड ग्रुप माइग्रेट्स ओवर आर्थो पोजीशन, बट व्हेन आर्थो group group is already substituted, is substituted already substituted already substituted, ये केस नंबर सेकंड है, already substituted, then migration of allyl group, migration of allyl group takes place over para position, over para position, migration किसके होगा, para position with retention configuration, बहुत ध्यान दीजिएगा, with retention configuration, मतलब जो वो माइग्रेशन होगा, जो एलाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा वो रिटेंशन फॉर्म में, जिस रूप में निकला है उसी रूप में आकर जुड़ेगा। केस नंबर फर्स्ट क्या था कि एलाइल ग्रुप इन एलिल फेनिल ईथर, the allyl group is migrates over artho position of benzene nucleus, with inversion in configuration, inversion in configuration का केस मैंने आपको उसमें बता दिया। ठीक, मतलब आर्थो पोजीशन पे अगर एलाइल ग्रुप शिफ्ट हो रहा है तो इन्वर्जन फॉर्म में शिफ्ट होगा, अगर पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा है तो रिटेंशन फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि पैरा तक जाते जाते आर्थो पे पहले वो सब्स्टिट्यूट होगा, आर्थो पे जब वो शिफ्ट हो जाएगा तो आर्थो वाले पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूट लगे हैं उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ये पुनः माइग्रेट करेगा, पैरा पोजीशन पे जाएगा, तो जब पुनः माइग्रेट करेगा एक बार उस कंपाउंड का इन्वर्जन हुआ है, इन्वर्जन का पुनः इन्वर्जन हो जाएगा, फाइनली रिटेंशन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये तीन इंटरेस्टिंग रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है, कौन देता है, इसके बारे में आप देखिए जरा। दिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन इज गिवन बाय this rearrangement reaction is given by phenyl ester, when phenyl ester या when phenyl acetate, आप ऐसा भी बोल सकते हो, when phenyl acetate is treated with, when phenyl acetate is heated with AlCl3 at 200 degrees Celsius temperature, then rearrangement takes then ortho hydroxyacetophenone,
Estophenone is formed this rearrangement reaction is called Fries rearrangement reaction. Fries rearrangement reaction. Fries rearrangement reaction. ओके, आइए भाई फटाफट देखिए क्या होने वाला है। ये आपका कंपाउंड है, ठीक है। ये OC double bond OCH3. This is the phenyl acetate. phenyl acetate है। इसको जो है AlCl3 की उपस्थिति में और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है तो ये आर्थो हाइड्रॉक्सी एस्टोफिनोन और पैरा हाइड्रॉक्सी एस्टोफिनोन में चेंज हो जाता है। यहाँ पे आर्थो हाइड्रॉक्सी एस्टोफिनोन एंड पैरा हाइड्रॉक्सी दोनों होगा, एंड पैरा हाइड्रॉक्सी एस्टोफिनोन यहाँ पे नोट कर लेंगे हैं, पैरा हाइड्रॉक्सी एस्टोफिनोन दोनों बनता है। तो ये हो जाएगा OH, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा OH और ये हो जाएगा C double bond OCH3. This is the आर्थो हाइड्रॉक्सी एस्टोफिनोन, प्लस पैरा हाइड्रॉक्सी एस्टोफिनोन में देख लीजिए, ये पैरा हाइड्रॉक्सी एस्टोफिनोन OH और ये C double bond CH3 पैरा हाइड्रॉक्सी एस्टोफिनोन। Okay, now we are going to discuss how can orthohydroxy estophenoon and parahydroxy estophenoon are produced by the phenyl acetate. Okay, समझ में आ रहा है सबको ना? तो ठीक है, आइए देखिए। चलिए मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे हम लोग, कैसे वो प्रोड्यूस होता है मैकेनिज्म। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है फ्राइज रीअरेंजमेंट में। इसमें बेटे ध्यान रखिएगा, दो तरह का रीअरेंजमेंट पढ़ने को मिलता है। एक होता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे, मींस इसका जो मैकेनिज्म होगा दो रूपों में हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे, एक इंटरमॉलिक्यूलर फॉर्म में और एक इंट्रामॉलिक्यूलर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज द इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का मतलब ये होता है कोई भी सबस्ट्रेट है, सपोज करो ये X और Y एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर A लगा दिया। अगर सपोज करो ये वाला पार्ट जो है एक पार्ट टूटता है, टूट कर निकल जाता है और फिर आकर जो है टूट कर निकल जाता है, आकर फिर इस पे जुड़ता है, टूट कर निकल जाता है, ये सपोज करो टूट कर क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। यहाँ पे मैं कुछ भी चार्ज ना लगाऊं, सिर्फ आपको समझ में जाएगा। एक बार टूट कर निकलेगा, दूसरी बार आकर क्या करेगा, ये A- आकर इस पे लग जाएगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ इस पूरे सिस्टम में से ये एटम क्या हुआ, इस सिस्टम को लीव किया, टूट कर हट गया, फिर आकर जुड़ गया। इस तरह के रीअरेंजमेंट को इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट बोलते हैं। बट अगर आपके पास यही मॉलिक्यूल है, अगर ये जो है टूटा नहीं, तब तक आकर इससे इधर टूट रहा है, इधर आकर बॉन्ड बना रहा है, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, X और Y। इधर बॉन्ड टूट रहा है, इधर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस तरह के रीअरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ इस तरह के रीअरेंजमेंट में जो रीअरेंजमेंट करने वाला आइटम होता है वो क्या करता है, कंपाउंड को छोड़ता नहीं है, सिस्टम को छोड़ता नहीं है। एक तरह से बॉन्ड टूट रहा है, दूसरी तरह बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, अर्थात ये कंसंट्रेट टाइप के होते हैं।
कंसंट्रेट टाइप के रिएक्शन होते हैं, आपको पता है कंसंट्रेट रिएक्शन किस टाइप के होते हैं those reaction in which bond breaking and bond formation process takes place simultaneously are called concerted reaction. आपको पता है कि all the pericyclic reaction is concerted reaction but all the concerted reaction is not pericyclic reaction. ये कंसंट्रेट टाइप का हो गया, बट यहाँ पे पेरिसाइक्लिक फॉर्म आपको नहीं देखने को मिला है। ओके, तो आइए देखें, हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। ओके, तो आइए देखें, जैसे आपने देखा कि ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये O C डबल बॉन्ड O CH3, मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म के बारे में बात करूंगा। AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि AlCl3 लुईस एसिड है, वीक लुईस एसिड है। ये लुईस एसिड किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, जहां ये ऐसे स्थानों पर अटैक करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो यहाँ पे लुईस एसिड मैंने लगा दिया। अब ये क्या करेंगे, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर जाएगा, और जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो और यहाँ पर हो जाएगा छोटा, थोड़ा मैं छोटा लिखूंगा, क्या होने वाला है देखिए, ये O, यहाँ पे हो जाएगा AlCl3, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, चूंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो रहा है, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल। अब होगा क्या कि ये जो बॉन्ड है इस तरीके से, ये वाला बॉन्ड जो है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है इस पे जाएगा। तो इस तरीके से ये टूट कर निकल जाएगा। किस रूप में टूट कर निकलेगा, ये निकलेगा C डबल बॉन्ड O, सॉरी कुछ उल्टा हो गया है, आप इसको फिर से देखिए। अब देखिए जरा, ये वाला बॉन्ड इस पे, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा। फिर से मैं बना दे रहा हूँ, अब देखिए जरा, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा। ऐसी स्थिति में ये हमारा जो है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O किस रूप में निकल रहा है, मैं आपको दिखाऊं। C डबल बॉन्ड O CH3, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, ये आपका एसीटोनियम आयन, एसीटोनियम आयन, एसीटोनियम आयन, जो कि इलेक्ट्रोफाइल के रूप में निकल रहा है। और फाइनली हमारा जो कंपाउंड बना है वो इस तरीके से बना है, ये हो गया OAlCl, यहाँ पे डबल बॉन्ड और अगले स्टेप में क्या होने वाला है, अगला स्टेप में भी कंटिन्यू करूंगा। अगले स्टेप में क्या होगा, इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज करके इस पे आएगा, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, इस पर आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O प्लस और AlCl3 माइनस। ओके, और ये आकर क्या होगा, इस पर आकर ये एसीटोनियम आयन जो है प्लस C डबल बॉन्ड O CH3 आकर इससे जुड़ेगा। जब इस पे निगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव वाला आकर इस पे जुड़ जाएगा, ये H, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल। फाइनली क्या होगा, देखिए जरा, हम AlCl3 को यहाँ पे आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक, आप जो है, आइए देखें, अब एट लास्ट में ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा और ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, और यहाँ से ध्यान रखिएगा, हम क्या करें, पहले एक काम करते हैं, इसमें से AlCl3 को डिपार्ट कर देते हैं। AlCl3 को जब हम डिपार्ट करेंगे तो ये AlCl3 जो है निकल जाएगा, और ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये H, और ये C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। एट लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होने वाला है, ध्यान रखिएगा सभी लोग,
बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला बॉन्ड बेटे, बॉन्ड का अंदर अरेंजमेंट ठीक नहीं है, आप इसको पहले ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, एट लास्ट में ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा। तो देखो जरा, देखे जरा, फाइनली क्या हो जाएगा, कंपाउंड, ये हो गया हमारा OH, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्योंकि इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, ये दोनों आपस में गए। अब देखो ये पोजीशन इसका आर्थो है, ये पोजीशन आर्थो है, ये मेटा है, ये मेटा है, और ये आर्थो चाहे, चूंकि यहाँ पे एस्टोफिनोन है ना, एस्टोफिनोन की प्रायोरिटी जो होती है, तो वो ये आपका जो है एस्टोन के रूप में है, तो हम इसके रिस्पेक्ट में इसको आर्थो मान लें। ये आर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये मेटा हो गया, और ये इसका नाम क्या होगा, आर्थोहाइड्रॉक्सी, आर्थोहाइड्रॉक्सी एस्टोफिनोन, आर्थोहाइड्रॉक्सी एस्टोफिनोन। ओके, ये आर्थोहाइड्रॉक्सी एस्टोफिनोन। अब देखो जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या हुआ है, इस सिस्टम से ये जो CO ग्रुप है, एस्टोनियम आयन है, पहले टूट कर निकला है, फिर आकर अटैक किया। इस तरह के रीअरेंजमेंट को इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। Means in this type of rearrangement reaction, first of all acetonium ion get depart from the phenyl acetate. After the depart of acetonium ion, then acetonium ion attacks over ortho or para positions. इसी तरीके से similarly para positions पे भी होगा, similarly para positions पे भी होगा। आप इसी तरीके से पैरा पोजिशन पे करा के देख लेंगे, वहां पे पैरा हाइड्रॉक्सी एस्टोफिनोन हो जाएगा। अब हम लोग दूसरी बात करेंगे, दूसरा रीअरेंजमेंट था मैकेनिज्म के थ्रू, दूसरा रीअरेंजमेंट था इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मैंने आपको बताया कि इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है एक प्रकार का ऐसा रिएक्शन, ऐसा रीअरेंजमेंट है जिसमें सबस्ट्रेट से रीअरेंजमेंट करने वाला एटम या मॉलिक्यूल्स टूटता, जैसे टूट रहा है वैसे बाढ़ बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कंसंट्रेट टाइप का रिएक्शन है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे दिस इज ए टाइप ऑफ, दिस इज ए टाइप ऑफ कंसंट्रेट रिएक्शन, टाइप ऑफ कंसंट्रेट रिएक्शन। यहाँ पे कंसंट्रेट रिएक्शन है because bond breaking, because bond breaking and bond formation process takes place, bond formation process takes place simultaneously, simultaneously। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया दोनों एक साथ होती है, इसलिए ये कंसंट्रेट रिएक्शन है। कारण ये है, इसमें मैंने आपको बताया इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कैसा रिएक्शन है, जो रीअरेंजमेंट करने वाला आइटम होता है वो वहां से अपना पोजीशन को छोड़ता ही नहीं है, तब तक दूसरे पोजीशन पे बॉन्ड बना लेता है, अर्थात ये सिस्टम से मॉलिक्यूल से कभी अलग नहीं होता।